Okay, finally, let's start with a good morning message to all of you. And as I said, let's hope all are in the best spirits, isn't it? Good morning message from Harshit Lohani, Aryan, Rishav, Abhya, Dhruv, and so on. Some are still in the pipeline, rather waiting room. Sometimes curiosity really is created because of some small utterances. Aditya Mathura said yesterday we were about to tell something. Actually, there are so many observations. Let them pile up a little bit. We will have some discussion. Good morning, Nishtha, Garv, Krishna, M. Rawat, and so on. Well, we were in the middle of discussing collisions. We had a fair bit of idea about what collision is. And curiosity created even in they also. He's also like, kaun hai? Kind of. Chalo, dekhte hain. We'll have a discussion maybe today. Let's see. The thing is that we were discussing collisions. So let's continue with our favorite discussion on collisions. Collisions is something which is based on our existing concepts. So like we have not studied anything new. And those few cases like interchanging and all, those things, as you know, happen on their own. Today we'll talk about a very practical thing, and that is called as Newton's pendulum. This is something that I have a certain small suggestion, and that is maybe one of you can volunteer. Volunteer क्या करना है बताता हूँ मैं. Once you type this in YouTube, you will get lots of videos. Get some good ones, maybe one or two. Which are around maybe 3, 4, 5 minutes or something like that. Maybe a little bit more also. Because बड़े सारे cases discuss होता है. It's a very interesting example of momentum being transferred from one body to the other. Why it is interesting and fascinating, as you know, the name is Newton's pendulum, so Newton must have done something fascinating. Scientific discoveries में अगर देखेंगे तो Newton was phenomenal. ठीक है ना? Now what is it about? Newton's pendulum is something like this. That let's say there is a pendulum. There is another one which is just adjacent to it. Okay. There is another one which is just again adjacent to it. Fine. Another one which is adjacent to it. All the lengths are equal. All the masses are equal. Same level है, वो थोड़ा hand drawn है तो इसके थोड़ा लग रहा है. But जो भी है, all the lengths and masses are equal. ठीक है ना? They was asked कि जिसमें 4-5 ball strings से attached होता है. That's right. So this is what is the Newton's pendulum. Now what is so special in that? So what we are discussing is what is so special in that. ठीक है ना? First thing is that, let us say, I take this pendulum to the side and leave it. If I leave it, you will see that it comes and hits this one. And after that, interestingly, what you will find is that these two remain at rest. Only one pendulum goes to the other side. Then this again comes back and hits the other ones. And only one of them will go to the other side and so on. Now that's interesting. That means if there are 4 balls, let's say, then the middle ball, if there are 4 balls, let's say, then the middle 2 balls just do not do anything. So if I, let's say, take this one, put it to the side, leave it, it will come and hit. And only the last one will go. And again come and hit. And only the last one on this side will go. And so on. So the middle 2 ones will remain just at rest. Right from the beginning till the end. So they seem to be almost playing no role at all. Well, the truth is not that. Truth is that they are obviously part of the system. And therefore they must be doing something. You might say they are doing nothing. They are just sitting at rest.
That might be the way we are looking at it, but in physics terms, that is not the fact. What is going to happen is that when this hits and only this one is going away, so something must be happening in between, which is responsible for this interesting development. Let's look at from the point of view of what we read yesterday. Yesterday we read about, if you remember, कि अगर मान लो एक m मास होता है और अगर एक m मास होता है, ठीक है ना, दो अगर m मास होता है और अगर ये कुछ u1 वेलोसिटी से आता है और ये कुछ u2 वेलोसिटी से आता है, in that case what happens is that the velocities get interchanged. That's what we read. तो इंटरचेंज का मतलब ये हो गया कि देखना थोड़ी देर बाद पता क्या होगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा u1 और इसका वेलोसिटी हो जाएगा u2. Fine? Yeah, some of you are saying कि yes, ये हमने देखा and so on. Momentum transfer is what we are saying. Krishnaga says this is also called as Newton's cradle. Yeah, exactly. I mean, called by several names. Names is not the issue. Issue is about what is happening. So, like, if there is m mass and m mass, this is u1, this is u2. So, after hitting, the velocities get interchanged. So, velocities get interchanged. Yeah, that's what is happening. अब सुनो, इसके बाद क्या है ना? इसके बाद ये है कि इसको यूज करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे ये हो पा रहा है. मतलब इसमें ऐसे कैसे हो रहा है कि हमने अगर इसको छोड़ दिया तो ये आके हिट करता है और सिर्फ लास्ट वाला जाता है. बट यू नो व्हाट, देयर आर सम थिंग्स इंटरेस्टिंग इवन बियॉन्ड दिस आल्सो. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. अगर मान लो ऐसे ना करके, सपोज तुम ऐसे करते हो कि इसमें से दो निकालो, ऐसे करके whatever. You know what will happen? जैसे इसको छोड़ के कर दोगे ना तो देखना ये आके हिट करेंगे और देखना ये दोनों तो रेस्ट पे आ जाएंगे. ये दोनों देखना रेस्ट पे आ जाएंगे और देखना ये दोनों बाहर चले जाएंगे. Like these two will now go like this. Whatever. वो तो अपने आप देख लो साइज वाइज का हिसाब से. So what is going to happen is that if you take these two out and leave it, these two will go out and they will come to rest and so on. In fact, here there are 4 balls. Let us say अगर ऐसे 5 वाला कर दे तो 1 2 3 4 5 और सपोज तुम 2 को ऐसे कर देते हो, 2 को, तो देखना ये जाके हिट करेंगे, बीच वाला रेस्ट पे रहेंगे और जो लास्ट के 2 है वो ऐसे चले जाएंगे. So like this what is going to happen and so on. Not only that, अगर तुम 3 को ले जाते हो तो देखना आखिरी 3 चले जाएंगे. Now that means there is some system which is happening. There is something that is happening. ठीक है? What is that? So first of all, we will get revert to this. That if there are equal masses and there is elastic collision, in that case, and of course head on, in that case, velocities are interchanged. Now let's look at how this is happening here. Let's look at that. Actually, पता क्या हो रहा है? ये सारे masses equal है, m and so on. तो मान लो ये आके हिट करता है इसको. So this is ball 1 is suppose hitting ball 2. As per this, what will happen? Because ball 2 was at rest, ball 1 comes with some velocity and hits ball 2. तो क्या होगा? Ball 1 rest पे आ जाएगा. ठीक है ना? So what will happen is that ball 1 will now come to rest and ball 2 will now go ahead. Ball 2 will go ahead and hit ball 3. Ball 2 will now go ahead and hit ball 3. They are again equal mass. तो बॉल 2 का सारा वेलोसिटी बॉल 3 पे चला जाएगा और बॉल 2 देखना रेस्ट पे आ जाएंगे. आ गया सेकंड का एक्सप्लेनेशन. अभी जो बॉल 3 है ये कुछ वेलोसिटी से आगे निकला, वही प्रीवियस वाला वेलोसिटी लेके, और बॉल 4 को हिट करेंगे. तो जैसे बॉल 4 को हिट करेंगे
तो ball 3 will come to rest and ball 4 will go ahead. So only the fourth ball will come this side. ऐसे नहीं कि आके हिट किया तो एकदम से पूरा गुच्छा ही जो है आगे निकल गया, ऐसे नहीं होता है, because of this only. So therefore we have a case where ball 1 hits 2, 2 goes ahead, 1 comes to rest, then 2 hits 3, 3 goes ahead, 2 comes to rest, 3 hits 4, 3 comes to rest, and only 4 goes ahead. So that's how only one ball at the end goes up. ये हो गया explanation. अब एक काम करते हैं, देखते हैं अगर 2 होता है तो क्या होता है. This is a little more involved. तो थोड़ा इसको अच्छे से सुनना. अगर मान लो 1 और 2 ऐसे करके छोड़ देते हो, let's say go to 3 and 4, तो पता क्या होता है, सबसे पहले तो 2 और 3 हिट करता है. थोड़ा इसको समझो, सबसे पहले 2 3 को हिट करता है, ठीक है ना. तो 2 जैसे 3 को हिट किया तो क्या हुआ, 3 आगे चला गया, 3 आगे चला गया, 2 रेस्ट पे आ गया. 2 रेस्ट पे तो आया, लेकिन जो 1 है वो तो अभी भी चल रहा है. तो क्या होता है, 1 आके फिर 2 को हिट करता है, ठीक है. तो क्या होगा, अब 2 चलने लगेगा. यानी 2 रेस्ट पे भी आया लेकिन चलने भी लगा. क्यों 2 रेस्ट पे क्यों आया, क्योंकि 2 जाके 3 को हिट किया, 2 जाके 3 को हिट किया. 1 2 3 4, तो 2 जाके 3 को हिट किया तो 2 रेस्ट पे आ गया, 3 आगे चला गया, ठीक है. और इतने में क्या हुआ ना, 1 आके 2 को हिट किया तो 1 रेस्ट पे आ गया, 2 फिर चलने लगेगा, 2 फिर चलने लगेगा, ठीक है ना. तो यानी ये स्टेटस है. अभी 3 जब 4 को हिट करेगा तो 3 खुद रेस्ट पे आ जाएगा और 4 चलने लगेगा. लेकिन जब 3 रेस्ट पे आया, इतने देर में 2 फिर से चलने लगेगा, बिकॉज 1 इज हिट. तो 2 आके फिर से 3 को हिट करता है, समझे ना. यानी क्या हो गया, फाइनली 3 और 4 दोनों ही चला जाएगा. फिर तो जब 2 ने आके फिर से 3 को हिट किया तो 2 खुद रेस्ट पे आ गया, 3 चलने लगा, 4 तो ऑलरेडी चलना स्टार्ट हो गया था. तो देयरफॉर ओनली 3 and 4 गोज आउट. आई होप मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया. तो मैं ब्रीफली एक बार दोबारा बता देता हूं. फर्स्ट 2 hits 3, so 2 comes to rest, 3 goes ahead. But then 1 comes and hits 2. तो 1 भी तो मूव कर रहा है ना. तो 1 comes to rest, 2 now goes ahead. Fine. अच्छा, in the meanwhile what has happened? 3 goes ahead and then hits 4. So 4 goes ahead and 3 comes to rest. And then from behind 2 now hits 3. So 2 comes to rest and 3 goes ahead. यानी नेट रिजल्ट क्या हुआ, 3 और 4 दोनों ही अहेड चले जाएंगे. That is what the result is. तो देखो अगर 2 को लेके करोगे तो देखना 2 चले जाएंगे ऐसे. अब एक काम करता हूं, मैं बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन में नहीं जाना चाह रहा हूं, बट यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग लाइक दिस. जैसे खुद एक्सप्लेन कर लेना अपने आप कि अगर 5 का सेट यूज करते हो, 5 सेट ऑफ बॉल्स, इन दैट केस 2 को लेके छोड़ दो तो देखना आखिरी 2 चले जाएंगे. वो भी ऐसे ही करके इसको ये आगे हिट करेगा, फिर रेस्ट पे आ जाएगा, फिर पीछे से आके उसको कोई और हिट करेगा, फिर चलने लगेगा, फिर सामने वाले को हिट करेगा. ऐसे को सीक्वेंस में चलेगा. डू इट योरसेल्फ. नहीं अटकता है तो मेरे से पूछ लेना. द बेस्ट पार्ट इज दैट अगर मान लो तुम 3 लेके भी करते हो ना, जैसे मान लो 3 ऐसे हो गया है ना, और 4 और 5 ऐसे कुछ है मान लो, तो देखना पता क्या होगा, 3 आके ऐसे हिट करेंगे और देखना आखिरी 3 चले जाएंगे. अच्छा, ये जो इतने सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ये ना जल्दी से विश्वास होगा नहीं, मुझे मालूम है. इसलिए मैं बताऊं इसका सोल्यूशन क्या है. इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि व्हाई नॉट डू इट योरसेल्फ. समझ रहे ना, व्हाई नॉट डू इट योरसेल्फ. नाउ यू कैन नॉट डू इट एट होम, तो क्या बेस्ट कर सकते हो, मैं किसी का किया हुआ देख सकते हो. तो डू वन थिंग, आज कोई एक जने वॉलंटियर करो और YouTube से एक वीडियो डाउनलोड करो. लिंक मत भेजना, लिंक भेजना इज द इजीएस्ट थिंग. So what you do is that you download it and put it in the group so that everybody can see it, irrespective of whatever the status is. So therefore, somebody take the responsibility and let's see who does it. I mean, if there is a volunteer, कल तक पता चल जाएगा, है ना. चलो let's move on now. That was a interesting example of Newton's pendulum where this is in action. ये जो equal mass वाला चीज है, that is what is in action in case of Newton's. अगर 3 को पुल करते तो 3 आगे 3 ही जाएंगे, आखिरी 3 जाएंगे. और उसको भी ऐसे आर्ग्यू करके खुद कर लेना. अटकता है तो मुझे बता देना, मैं कभी और डिस्कस करूंगा. एक ही चीज है, पूरे दिन डिस्कस करने में मजा नहीं आता. अगर मान लो 5 का सेट है और 3 को पुल करके छोड़ दो तो देखना आखिरी 3 चले जाएंगे. अच्छा, ये मैं बोलूंगा तो विश्वास जल्दी से होगा नहीं, मुझे मालूम है. इसलिए बेहतर पता है क्या है
कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लेना, इसके वीडियोस अवेलेबल है नेट, ठीक है ना। बल्कि वहां पे तो और भी इंटरेस्टिंग कर रखे हैं। वहां पे उन्होंने पता है क्या किया है, जैसे मान लो 5 का सेट है, 2 को ऐसे ले लो दोनों तरफ और छोड़ दो, तो देखना पता है कैसे होगा, यूं ऐसे 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 होगा, और बीच वाला जो है ना वो रेस्ट पे रह जाए। 5 के सेट में 2 इधर 2 इधर, तो एक रह गया ना, तो ऐसे करके अगर छोड़ दो तो ये आके हिट करेंगे, फिर वापस जाएंगे, एंड सो ऑन, सो द प्रोसेस विल गो ऑन, ऑल बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। इसी रिजल्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। चलो, see it once in the YouTube, you will be able to better believe what I'm saying. ऐसे तो कई बार विश्वास होता नहीं है ना। चलो, let's proceed अनिल। पहले एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगा, then maybe we can move on. First question is like this, that ये m मास है और लेंथ l है, ठीक है, और हमने एक प्रोजेक्टाइल यहां से लॉन्च किया, वो 2m मास का है, सो दैट हाईएस्ट पॉइंट पे आके हिट करे, ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे आके हिट करे। तो लेट अस से ये u स्पीड है एट एन एंगल थीटा, फाइन। E is equal to 0 और E is equal to 1 के लिए इसको सॉल्व करो, फाइंड U, so that vertical circle is completed। देख रहे हो, वर्टिकल सर्कल फिर से आ गया डिस्कशन। रोज के हाईएस्ट पॉइंट पर है। हाँ जी, the projectile is being hit at the highest point, ये दिया हुआ है। Som has asked, ध्रुव शर्मा से इसकी वाकई विश्वास नहीं हो रहा है। ओके, देहम has asked कि अगर मैं 4 लेके 3 को एक तरफ करूंगा, तो अगर 4 में से 3 को एक तरफ करके छोड़ दोगे ना, तो देखना आखिरी 3 चला जाएगा। I mean, instead of me going into so many details, you just understand this much कि जो चीज यहाँ से रिलीज करोगे वही चीज वहां पे आगे जाएगा। यहाँ पे 3 रिलीज करो तो वहां 3 जाएगा, 2 रिलीज करो 2 जाएगा, 1 रिलीज करो 1 जाएगा, irrespective of whatever the number of balls that are there in the pendulum set, ठीक है ना, that's the case. So has also asked the same question, and that is, अगर 3 को छोड़ेंगे 5 में से तो क्या होगा? So I think I have given sufficient input. Now go ahead. ठीक है ना? I think you can understand from that itself. चलो, let me start. I think it's a decently easy question. I mean, पहले E is equal to 0. E is equal to 0 का मतलब क्या होगा? सेम वेलोसिटी होगा। तो अगर ये 2m होता है और इसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे बोला है मैंने, तो हिट्स एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हिट करता है तो इन दैट केस क्या होगा? E is equal to 0 होगा, तो इन दैट केस क्या होगा ना, 2m into u cos theta is equal to m plus 2m into under root of 5g। ठीक है, that's it। तो यानी 3m का वो m कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा, तो यानी u is equal to 3 into under root of 5gl by u is equal to 3 into under root of 5gl by 2 cos theta। ठीक है, देख लो अच्छे से।
I think few of you got the right answer. Bhavesh से कि e is equal to 1 के लिए ये होगा. अच्छा चलो ठीक है. Rishabh has I think given the answer for the e is equal to 0 वाला case. I think that's what it is. Bhavesh has given the answer for e is equal to 1. तो e is equal to 1 वाला भी किया नहीं करते हैं. तो e is equal to 1 वाले में तो ऐसे नहीं होगा. ये e is equal to 0 के लिए. This is for e is equal to 0. तो पहले e is equal to 0 वाला था. तो हमने पहले इसको निपटा दिया. ठीक है. Okay. Now, e is equal to 1 के लिए क्या हो जाएगा? That 2m into v1 plus m into under root of 5g. और e is equal to 1 है, इसलिए u cos theta will be equal to under root of 5. वैसे इसको एक काम करें, पहले सिंप्लीफाई कर लें. m से डिवाइड कर लो. m से डिवाइड करते हो जाएगा 2u cos theta is equal to 2v1 plus under root of 5g. क्योंकि e is equal to 1 है, तो therefore I can also write u cos theta is equal to under root of 5gl minus v1. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2u cos theta is equal to 2 into under root of 5gl minus 2v1. तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो. तो 1 plus 2 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2u cos theta plus 2u cos theta is 4u cos theta will be equal to, ये minus 2v1 कैंसिल हो गया तो 3 under root of 5gl. बस तो u आ गया 3/4 cos theta into under root of 5gl. I think Bhavya has given an answer. No, 2 cos square theta तो नहीं आएगा. Yeah, 3/4. Harshit Lohani has also given an answer. Dev has also given an answer, but somehow सही नहीं लग रहा है मुझे. ये e is equal to 1 के लिए आंसर है. e is equal to 1 में क्या होगा ना, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी. तो ये तो रेस्ट पे है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बोलते क्या होगा? u cos थीटा. तो u cos थीटा इज इक्वल टू फाइनली ये जाएगा अंडर ऑफ 5gl से और दूसरा जाएगा v1 से 2m वाला मास. ठीक है ना. तो इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 5gl minus v1. तो इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया सो दैट ये v1 खत्म हो जाए, इसका जरूरत नहीं है. ये आंसर आ गया 3/4 cos theta into under root of 4gl. अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक. चलो ठीक, नो प्रॉब्लम. वेब बेसिस की मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया. चलो ठीक. देवव्रत, चलो इसका आंसर किसी का आया नहीं था, या हो सकता है अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया होगा, या आई डोंट नो व्हाट द स्टेटस इज. तो e is equal to 1 का सॉल्यूशन ये है ना. तो लाइक द टू आंसर्स आर, फर्स्ट इज फर्स्ट का तो सही आया था सबका. ठीक है ना. तो e is equal to 1 का आंसर ये होगा. ठीक है. 3/4 cos theta into under root of 5gl. Okay, now here I have a question, and that is थोड़ा ध्यान से सुनना. Suppose I say that theta is equal to, थोड़ा ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, theta is equal to 37 डिग्री. ठीक है. और u is equal to ठीक है, e is equal to 0. चलो एक काम करो, इसको 4gl कर या 3gl कर. ठीक है. क्वेश्चन ध्यान से सुनो. क्वेश्चन इज find tension at the highest point after collision.
ये क्वेश्चन, चलो गो अहेड। E इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में बहुत ही सोच समझ के स्पेसिफिकली दिया हूं। देखो कैलकुलेशन क्या होगा मुझे भी नहीं पता, मैंने तो ऐसे रैंडम वैल्यूज बनाता हूं, देखा होगा कभी मैं बुक से क्वेश्चन तो देता नहीं, जनरली ऐसे ही कुछ बना के दे देता हूं, तो कई बार देखा होगा मेरा ही अटक जाता है, क्यों क्यों पता चला वो वैल्यू ही वैलिड नहीं है, हो जाता है कई बार, तो दैट इज नॉट एन इशू। my way of communication or during the discussion is only one thing, is that let's discuss the different possibilities and ideas। बाकी क्वेश्चन के वैल्यूज अच्छा देना नहीं देना की काटा पीटे हो जाए और दोस्त, तो देखो एग्जाम में जब होता है तो वो लोग अच्छे से इसको सॉल्व करके फिर देते हैं, मैं तो खड़े खड़े ऐसे ही बता देता हूँ कुछ भी डेटा। तो therefore my objective is let's discuss the concepts। चलो ठीक है, let's start। E is equal to 0 है, तुमको निकालना क्या है, फाइंड द टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद ये ऊपर जाएंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन बताना, दैट्स द क्वेश्चन। गो अहेड क्विकली। In the meanwhile that you are taking to solve, ठीक है ना, in the meanwhile if I look at the velocity at the top, it will be 3gl into 4 by 5 है ना, cos 37 is what, 4 by 5, यानी velocity हो जाएगा 4 by 5 into under root of 3g। तो देखो ये जो 2m मास है ये ठीक कोलिजन के पहले ये इसका मोमेंटम 2m into this हो गया। अब देखो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, is equal to m plus 2m है ना, m plus 2m into v, तो m तो कैंसिल होगा 2/3, यानी v हो जाएगा इक्वल टू 2 by 3 और 4 by 5 तो लाइक 8 by 15 into under root of 3gl। अगर ये वेलोसिटी में देता हूं तो देखो पहली बात तो ये थोड़ा देख लो जरा इससे कैलकुलेशन, ये देखो अंडर रूट ऑफ 2gl से कम है, दिस इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 2gl, यानी ये ऊपर तक नहीं जाएंगे, ये यहीं तक कहीं तक जाएंगे। सो लेट्स फाइंड आउट द थीटा एट दैट पॉइंट, है ना, कैसे निकलेगा, v थीटा का एक्सप्रेशन याद है ना, तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl into 1 minus cos theta। okay, चलो तो like 0 is equal to u square is what, this, यानी 8 by 15 the square into 3gl है ना, माइनस 2gl into 1 minus cos theta। वो तो 0 होगा तो gl सब कैंसिल होगा, तो 64 by 225, तो 64 को एक काम करो 32 कर लो, 32 into 3 और 3 का तो 225 के साथ होगा कैंसिल 75, तो 32 by 75, यानी 32 by 75 ये हो जाएगा 1 minus cos theta, ठीक है ना, तो cos theta हो जाएगा 72 में से 32 43, यानी cos theta is equal to 43 by 75। मैंने इसका ना ओरली कैलकुलेशन कर लिया है, अगर इसमें कुछ एरर है तो प्लीज पॉइंट आउट कर दो, ठीक है ना। cos थीटा का वैल्यू जो आ रहा है मेरा वो आ रहा है 43 by 75, इफ इट इज रॉन्ग प्लीज पॉइंट इट आउट, ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे कैलकुलेशन नेक्स्ट, तो ये तो मोमेंटम वाला हो गया, तो टेंशन क्या होता है, टी थीटा इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाय l, तब टी थीटा का एक्सप्रेशन लगाएंगे mu स्क्वायर बाय l, तो u स्क्वायर तो ये आ गया, हाँ ये वाला, यानी m into 8 by 15 into 3g mu स्क्वायर बाय l, तो ये आ गया, माइनस mg into 2 minus 3 cos theta, तो 3 into 43 by 75, ठीक है। अब सुनो मैं ये क्वेश्चन क्यों दिया था, अब थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, मतलब इन द सेंस कि बहुत बेकार है, ठीक है, एग्रीड, वो इतना टेंशन मत लो उसका, वैसे भी टेंशन ही निकालना है। मेरा पॉइंट समझो इज दैट
यहां पे मास क्या लिया जाएगा, मास क्या लिया जाएगा। सोम से इसके लास्ट इक्वेशन समझा दो। लास्ट इक्वेशन तो बेटा वही है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वो याद है ना, वो v थीटा का एक्सप्रेशन, और t थीटा का होता है mu स्क्वायर बाई l माइनस mg इंटू 2 माइनस 3 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो यार 43/7। पॉइंट इज दैट यहाँ पे m लोगे या 3m लोगे, ये बताओ। m भी तो है ना इन्वॉल्व, तो m लोगे या 3m लोगे। Okay, Jasraj says combined, Harshit Lohani M, Dhruv Sharma 3M, Aditya Mathur M, Dev says M, Shreyasi 3M, Sanya M, अब तो सारा M ही आ रहा है। सैयद, पार्थ, कुमार आदित्य, भव्य, ध्रुव, सोम, अब तो कई सारा और ऊपर भी चला गया, अब दिख भी नहीं रहा है। अंश अग्रवाल says कि M ही लेना पड़ेगा। ओम पाठक says M, ओके। ध्रुव शर्मा 3M, ऋषभ जैन एम, रूपल भी एम, एंड सो ऑन। देखो ई का वैल्यू देखो जरा, 0। तो अगर ई का वैल्यू 0 होता है तो हमने क्या बोला कि दोनों एक साथ चलेंगे, है ना। तो फिर क्या लेना चाहिए, एम या 3m। तो द पॉइंट इज दैट एक साथ चलना और चिपक जाना और एक यूनिट या बॉडी, कंबाइंड बॉडी हो जाना, ये अलग चीज है। अगर सिर्फ बोला गया E is equal to 0, then we will not assume from our end कि वो स्टिक भी करता है, ये पॉइंट। तो इस केस में सिर्फ E is equal to 0 बोला और कुछ नहीं बोला गया। Therefore what I will assume is that कि ये वाला ऐसे चला जाएगा और दूसरा वाला जो 2m है ना, वो ऐसे करके चला जाएगा, 2m वाला, तो ये वाला प्रोजेक्टाइल की तरह चला जाएगा, अलग हो जाएगा इस बार, अलग। जबकि इस केस में छोटा सा एक चेंज हो सकता है। देखो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये तो पता ही, छोटा सा एक चेंज हो सकता है। पता क्या हो सकता है, इस m के जगह हमें 3m लेना पड़े, पर उसके लिए लैंग्वेज क्या होना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए E is equal to 0 और फिर साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, हिट्स एंड स्टिक्स। तो अगर हिट्स एंड स्टिक्स होता है, अगर हिट्स एंड स्टिक्स होता है, इन दैट केस हम फिर छोटा सा एक चेंज करेंगे, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, छोटा सा एक चेंज है। क्यों, क्योंकि देखो चाहे m मास इस वेलोसिटी से स्टार्ट करे, इस वेलोसिटी से, या 3m मास इस वेलोसिटी से स्टार्ट करे, एंगल थीटा वही होने वाला है, एंगल थीटा यही होगा जो अभी हमने सॉल्व किया था 43/75। इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। बस ये कि जब टेंशन निकालना होगा तो उस समय m लेना है या 3m लेना है, ये डिपेंड करता है कि E is equal to 0 सिर्फ बोला गया या साथ में ये भी बोला गया है कि E is equal to 0 हिट्स एंड स्टिक्स। तो अगर हिट्स एंड स्टिक्स बोला जा रहा है या अगर हिट्स एंड स्टिक्स बोला गया है, इन दैट केस क्या होगा ना, कुछ नहीं करना, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस m को रिप्लेस करेंगे बाय 3m और कुछ नहीं होगा। यानी सिर्फ ये जो अभी p3 का वैल्यू आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, ये तो लंबा सा कैलकुलेशन है, तो विच यू कैन डू ऑन आवर ओन टाइम, दैट्स नॉट एन इशू। बस ये कि 3 टाइम्स करना, बस इतना ही डिफरेंस। देयरफॉर आई वाज सेइंग कि E is equal to 0 थोड़ा आराम से हैंडल करो। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि E is equal to 0 मतलब एक कंबाइंड बॉडी बन के जाएगा, ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो इस केस में होगा क्या, E is equal to 0 में स्मॉल m ऊपर चला जाएगा और 2m एज ए प्रोजेक्टाइल नीचे आ जाएगा। दे स्टार्ट विद द सेम वेलोसिटी, बट स्मॉल m को तो ऊपर खींचने वाला है, 2m को तो कोई खींचने वाला है नहीं, तो वो नीचे चला। दैट्स द ओवरऑल डिस्कशन। एक डाउट है सर, हाईएस्ट पॉइंट पे सर वो m ओमेगा स्क्वायर r तो 0 होगा नहीं, हाईएस्ट क्रेस्ट पे आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हाईएस्ट हाँ नहीं सर, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हाँ, तो m v स्क्वायर अपॉन 0 होगा, तो सर टेंशन का एक कंपोनेंट तो mg को बैलेंस कर रहा होगा, तो टेंशन के दूसरे कंपोनेंट को कौन बैलेंस कर रहा होगा। नहीं समझे नहीं, इसको दूसरे तरीके से सोचो, mg का कंपोनेंट टेंशन बैलेंस कर रहा है, दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करो, और mg का जो दूसरा कंपोनेंट है वो अब उसको वापस लाएगा, क्योंकि वो ऐसे थोड़ी वहां पे रुक जाएगा, वो तो वापस आएगा ना। तो अगर स्टेशनरी बॉडी को वापस आना है तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि टेंशन जो है mg का एक कंपोनेंट को बैलेंस कर रही है वाला, और mg का जो दूसरा कंपोनेंट टेंजेंशियल है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, जिसके वजह से वापस आएगा। दैट इज द इंटरप्रिटेशन। टेंशन को इंटरप्रेट मत करो, फिर पता है प्रॉब्लम आएगा। पता है क्यों, क्योंकि देखो टेंशन को अगर करो तो टेंशन का ये कंपोनेंट और mg का ये आ गया, तो इससे पता क्या होगा, एक नेट फोर्स अलोंग x भी आएगा और नेट फोर्स अलोंग y भी आएगा।
You might say, ये कैसे होगा ना, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो तो थोड़ी देर बाद ऐसे होने वाला है। तो एक्सेलरेशन अगर ऐसे है तो यानी कि mg माइनस t का एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वो प्रोवाइड कर रहा है। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, एक ये वाला फोर्स और एक ये वाला फोर्स, है ना। इसलिए सर्कुलर मोशन में हमेशा ध्यान रखना एक्स वाई से ज्यादा बढ़िया एनालिसिस होता है रेडियल और टेंजेंशियल। इसलिए टी का कंपोनेंट करके भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है, अभी कर ही दिया इनफैक्ट, लेकिन बेहतर एक्सप्लेनेशन होगा अगर तुम रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट से उसको इंटरप्रेट करो, दैट वुड बी अ बेटर एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, कोई और भी कुछ कह? हाँ तो बोलो। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो थोड़ी देर तक साथ चले और फिर गिर जाए? देखो पॉइंट इज दैट चिपक तो नहीं रहा है। अब थोड़ी देर का तो कोई डेफिनेशन नहीं होता है, मतलब होगा ऐसे कि जैसे मान लो ये थ्रेड है, ये पेंडुलम का वो मास है, ये आके हिट किया तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला, ये ऊपर इसलिए जाएगा वो थ्रेड है इसके पास, इस पर तो थ्रेड है तो ऊपर चला गया और इतने देर में नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके हो जाएगा। अब थोड़ी देर का तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना कितना देर है, वो तो इंस्टेंटेनियस चीज है और हम लोग इसको पार्टिकल मान के चल रहे हैं। तो जैसे ही पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर चला गया और ये थोड़ा सा नीचे आ गया तो दोनों अलग हो गए, है ना। तो देखो वो जो थोड़ा देर कह रहे हो दैट इज नॉट सो रेलिवेंट, ठीक है ना, समझ आ गया? Yes. Okay, now let's move on. This same collision can happen in a little different way also. In a little different way also. And that is like this. कि suppose ये pendulum है, same question दे रहा हूं, ये m मास है और एक पार्टिकल आके हिट करता है ऐसे, कुछ एंगल वेंगल ले लो 57, ठीक है, और यू नो कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी दे देता हूं मैं, और इसका इनिशियल वेलोसिटी सपोज है √4g, ये m मास का, ये भी m मास का, इस बार इसको 2m मास का, ठीक है। क्वेश्चन सेम है तो इसलिए इक्वेशन भी बनाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन इज दैट अगर E इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा और E इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा? टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, दैट्स इट। अब क्या करोगे? क्विकली कैलकुलेट। एक काम करो, क्योंकि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट पे काफी कैलकुलेशन जैसा अभी हमने दिया था, काफी कैलकुलेशन हो जाता। एक काम करो, पहला स्टेप ये बताओ, फाइंड आउट दी स्टेप्स में सबसे पहले कि वेलोसिटीज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच आफ्टर collision. चलो एक काम करो, इसको E इज इक्वल टू 0 पे हिट्स एंड स्टिक्स कर दो। एक्चुअली नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम देवव्रत एंड दैट इज ये जो 2m को 2m की तरफ फेंका ये वाला मास, ये m मास का है बाय द वे, 2m नहीं है, वो क्या स्ट्रेट लाइन में आ रहा है? दैट्स द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट, द आंसर इज दैट, आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट कि जस्ट हिट करने के पहले का वेलोसिटी, तो इसलिए हो सकता है ये ऐसे आया होगा, यूं ऐसे आया होगा, मे बी, आई एम नॉट बॉदर्ड, जस्ट कोलिजन के ठीक पहले ये वेलोसिटी, यानी ये गैप मत समझो, इसको समझो बिल्कुल यहाँ पे टचिंग और ये वेलोसिटी, तो इसके पहले कैसे आया एंड ऑल, लीव दोस असाइड। ओके, वी हैव ओनली गॉट वन आंसर फ्रॉम कृष्णागर, 400/4/GL 15 फॉर E is equal to 0। ये आया है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, क्योंकि देखो क्वेश्चन का असली स्टेप तो यही है, क्वेश्चन का असली स्टेप यही है। तो ठीक है, हर्षित लोहानी ने भी आंसर दिया, कृष्ण ने भी आंसर दिया, थोड़ा सा अंतर है, एक 3 और 4 का अंतर है, तो मैं जस्ट एक आध और आंसर के लिए वेट कर रहा हूं, इन केस अगर आ जाए तो अच्छी बात है।
ठीक है, अब आंसर काफी आ गए। पहले एक काम करता हूं, अब ध्यान से सुनो। अगर मान लो ये थ्रेड नहीं होता तो क्या होता है ना? थ्रेड अगर नहीं होता तो इन दैट केस क्या होता है, इस तरफ एक वेलोसिटी कितना होता, क्योंकि इज इक्वल टू 0 हिट्स एंड स्टिक्स वाला केस है, तो देयरफॉर ये हो जाएगा m into under root of 4gl is equal to 3m into v, यानी v is equal to under root of 4gl by 3, ये हो गया under root of 4gl by 3। अभी रुको, आंसर नहीं आया अभी तो ये तब होता अगर ये थ्रेड नहीं होता तो। अब प्रॉब्लम पता है क्या है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेलोसिटी है इसके एक कंपोनेंट तो इधर है और एक कंपोनेंट इधर, तो अगर ये 37 तो ये भी 37, तो ऑब्वियसली फिर ये भी 37, तो यानी ये हो जाएगा 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी हो जाएगा 4 अंडर रूट 4gl बाय 15, और ये हो जाएगा कितना, cos sin 3 है ना, 3/5, हाँ, तो यानी 3/15, अच्छा तो कैंसिल ही हो गया, तो अंडर रूट ऑफ 4gl by 5। This is what would have been the velocities had there been no thread just after collision। लेकिन थ्रेड क्या करेगा, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको रोक, थ्रेड विल स्टॉप दिस। क्यों? क्योंकि अगर ये वेलोसिटी को रखना है इन दैट केस इस पार्टिकल को यहां आना पड़ेगा, प्लस उधर भी जाएंगे बट यहां तो आना पड़ेगा ना, यानी थ्रेड के लेंथ के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। दिस इज अ थ्रेड, दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस इज नॉट अ स्प्रिंग। स्प्रिंग होता तो इलोंगेट करके उसको एडजस्ट कर लेता, कोई दिक्कत नहीं, पर थ्रेड है तो इसको अलाउ नहीं करेगा, यानी कि इसको पूरा स्टॉप कर, पूरा स्टॉप कर। So the velocity with which it will be released finally will be only this 4/15 into under root of 4gl। तो कईयों ने आंसर दिया, कृष्ण ने आंसर सही दिया, हर्षित ने बाद में आंसर चेंज कर दिया, ठीक फिर तो ओके। देहम थोड़ा सा मिस्टेक है बेटे, उसको ठीक कर लो। अरियंत ने भी सही दिया है, हाँ बाकी तो सब सेम दिया, हर्षित ने भी बाद में चेंज करके ठीक दिया, ठीक गुड। यानी क्या होगा ना, 4 into under root of 4gl by 15 will be the velocity after collision। ठीक है, तो देख लो। इनफैक्ट पता क्या, मैं एक काम करता हूं, इस कोलिजन को दो हिस्से में डिवाइड कर लूं, एक कोलिजन अलोंग x यानी टेंजेंशियल, और एक कोलिजन अलोंग y। y का तो खत्म ही कर, y का तो खत्म ही कर, सिर्फ x को लेके करो। क्यों? क्योंकि y का ना थ्रेड उसको उतना फोर्स देके एक जर्क फोर्स देंगे, यानी थ्रेड विल गिव एन impulsive force to stop the radial displacement of particle। और थ्रेड क्या कर रहा है जरा समझो, थ्रेड एक इंपल्सिव फोर्स देके, ठीक है ना, स्टॉप कर देंगे किसको, रेडियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को स्टॉप कर देंगे। दैट्स द थ्रेड्स रोल आई मीन दिस केस। ठीक है, आई थिंक अब तो इजी हो गया। फिर फाइंड आउट द टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो इसमें तो हिट्स एंड स्टिक्स है, इसमें तो 3m वाला ही लेंगे, तो यानी mu² तो आ चुका है, ये वाला 4, ये वाला u हो जाएगा, u मतलब हो जाएगा 4 into under root of 4gl by 15, है ना, तो उससे थीटा निकालोगे, यानी अब ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 इज फाइंड थीटा। अब एक चीज बताओ मुझे, क्या ये वाला पॉइंट को पार करेंगे, क्या इस वाले पॉइंट को पार करेंगे, क्या लगता है? इस वाले पॉइंट को पार करेंगे क्या इस केस में, ये वाला पार्टिकल? नो सर। ठीक है ना, ऑब्वियसली नो। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 2gl से कंपेयर करो, है ना, अंडर रूट 2gl से कंपेयर करना पड़ता है। तो अगर तुम इसमें से √2 निकाल दो तो अंडर रूट 2gl वो हो गया, √2 मतलब 4√2 by 15, दैट्स लेस देन 1, यानी क्या हो रहा है, ये √2gl से तो कम। तो देयरफॉर बीच में कहीं रुक जाएंगे, तो उस पॉइंट पे टेंशन निकालना है, यानी क्या करेंगे, फाइंड थीटा एट विच इट स्टॉप्स एंड देन यूज t थीटा टू फाइंड टेंशन। तो हम लोग रास्ता निकाल दिए, बाकी कैलकुलेशन ज्यादा इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा करके। टू फाइंड आउट टेंशन यूज
mass as 3m. क्यों? क्योंकि हिट्स एंड स्टिक्स है. अगर हिट्स एंड स्टिक्स नहीं होता तो बस एक चेंज करता मैं, और वो है यूज मास इक्वल टू 2m. अगर हिट्स एंड स्टिक्स नहीं होता, सिर्फ इज इक्वल टू 0 होता, इन दैट केस मास 2m यूज होता, और इस केस में m यूज होता, क्या बोलते हैं 3m यूज होता. m और 2m मिला के यहां तक जाएंगे. बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं. ठीक है, चलो. तो e इज इक्वल टू 1 का तो आप कर ही लोगे आई थिंक, है ना. मतलब इस कोलिजन को तो हटा ही दो. कोलिजन का मतलब ये वाला जो वेलोसिटी है ना, इसका ये वाला कंपोनेंट तो हमारे लिए इररिलेवेंट, कोई जरूरत ही नहीं. तो इस वाले के ये वाला कंपोनेंट लेके आप तो आई थिंक कर ही लोगे. e इज इक्वल टू 1 का खुद ही कर लेना. ठीक है ना. आई थिंक वी कैन लीव इट देयर. e इज इक्वल टू 1 पे वो है ना, e इज इक्वल टू 1 का जा सकता है. Aryan has asked ki will mass m also give a component of its weight in radial direction in this case. देखो ऐसा है ना, देखो रेडियल डायरेक्शन को तो हम कंसीडर ही नहीं करते. क्यों? क्योंकि थ्रेड रेडियल डायरेक्शन में कुछ भी होने नहीं देगा जब तक थ्रेड इंटैक्ट. अब थ्रेड इतना ज्यादा तेजी से फेंका कि थ्रेड वेड स्नैप कर गया और वो खत्म हो गया तो मामला लगा. बट जब तक थ्रेड है और लगा हुआ है तो रेडियल डिस्प्लेसमेंट वो नहीं अलाउ करेगा बाहर की तरफ. अंदर की तरफ अलाउ करता है, बाहर की तरफ अलाउ नहीं करेगा. तो देखो रेडियल डायरेक्शन में जो भी उसके फोर्स लग रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स दैट द थ्रेड विल मैनेज. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो वेलोसिटी है ना इसका, ये वाला कंपोनेंट लो, ये वाला कंपोनेंट तो अनदेखा ही कर, जरूरत ही नहीं देखने. तो e इज इक्वल टू 1 वाले क्वेश्चन में भी ये वाला वेलोसिटी लेके इमेजिन करो कि ये पार्टिकल यहां से आ रहा है और ये वाला वेलोसिटी लेके आ रहा है. उसके बाद आगे का अपना कैलकुलेशन कर लेना, फिर थीटा वीटा जो भी आएगा, और उसके बाद वी कैन गेट इट. ठीक है, आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशिएंट रिक्वायर्ड टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. Next question is like this, that suppose these are long threads. These are very long threads. Okay? And I allow them to move. So initially rest. Suppose they are moved, you are allowed to move for 4 seconds. फिर क्या किया गया? अब 4 सेकंड बाद क्या किया गया? After 4 seconds, what was done was that a particle of m mass is thrown like this with some speed. So find u so that velocity of 2m reverses its instantaneous value. E is equal to 0 दिया हुआ. Go ahead. Jasraj has asked a very innocent question. Is that अगर ज्यादा velocity दी तो स्ट्रिंग टूट भी सकता है क्या? ये तो ऑब्वियस है, स्ट्रिंग तो टूट ही सकता है ना. तो वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि भाई स्ट्रिंग नहीं टूट रहा है, मतलब दिया नहीं होगा. वी हैव टू एज्यूम इट. Aryan was asking that I am asking for calculation of tension. देखो आर्यन, टेंशन के कैलकुलेशन के लिए फिर से फिजिक्स स्टार्ट मत करो. टेंशन के कैलकुलेशन के लिए वही टी थीटा वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लो. mu स्क्वायर बाय l माइनस mg इंटू 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 3 cos थीटा. इसके लिए अगर फिर से mg का कंपोनेंट और वो वेलोसिटी और ये और वो सब चीजें अगर करने जाओगे, एंगल वैंगल, तो इन दैट के सामने से टाइम वेस्ट होगा. इससे अच्छा सीधे टी थीटा के एक्सप्रेशन में डाल दो, बस वो अपने आप वैल्यूज कैलकुलेट करके दे देंगे. हाँ, वैल्यूज प्रॉपर्ली पुट करना पड़ेगा कि m होगा, 2m होगा, 3m होगा, वो अपने आप थोड़ा सोच समझ के ठीक से पुट करना पड़ेगा. दैट्स समथिंग दैट ऑफ कोर्स यू हैव टू डू, है ना.
Ansh has given an answer quickly, and that is 40 meter per second. Interesting. Chalo, let's see. देखता हूं. Or maybe in the meanwhile I can take attendance. वैसे देखो जो क्लास में नहीं जाग रहे हैं, सो रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा इलाज तो खैर है नहीं. But unfortunately we have a responsibility, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. क्या करें? Ishita has also given the same answer, and that is 40 meter per second. चलो ठीक है. I'm getting the answers. I'm also looking at that. Okay. Gaurang has also given the answer of 40. Ansh Agarwal says कि सबको वीडियो ऑन करवा लो. ये जो कैट एंड माउस गेम होता है ना, ये पसंद नहीं आता है ना. फोर्स करो, जबरदस्ती करो, डांटो. दिस इज नॉट द राइट वे एक्चुअली. चलो एनीवे, फॉरवर्ड अटेंडेंस तो डाली दूं. बट आई थिंक इवन अगर रैंडमली भी एक दो जने को बुला लेते हैं और वो इसी तरीके से अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो पकड़ में आ ही जाता है, ऐसी बात नहीं है. और वैसे भी मुझे पता तो था पहले से थोड़ा बहुत, कौन सा मुझे नहीं पता चलता. इसलिए देखा होगा मैं कैमरा में कम देखता हूँ और लैपटॉप को ज्यादा देखता हूँ. तो मुझे नजर आ जाता है. चलो एनीवे, वन गुड थिंग इज दैट एवरीबॉडी इज गिविंग द आंसर ऑफ 40 मीटर पर सेकंड. ओम पाठक तुम्हारा 32 आ रहा है, वो चेक करो. 4G is what Shreyashi is saying, but I think 4G is also what 40 only. चलो गुड. स्नेहा, ओम, हर्षित, जसराज, श्रेयसी, अंश, आर्यन, अब तो सबने दे दिया. गौरांग, ठीक है ना, सबने यही दिया. दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड. अब देव ने भी दे दिया, ओम पाठक ने भी 40 बताया. चलो ठीक है, गुड. यानी क्या हो गया इस केस में ना, जो एक्सेलरेशन आएगा वो तो 3mg minus 2mg upon 5m, यानी g/5. यानी g/5 का मतलब एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगा? 4 सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड. तो लाइक इसका 8 मीटर पर सेकंड इस तरफ और इसका 8 मीटर पर सेकंड इस तरफ. ठीक है. तो थोड़ा सा एक चीज जरा ध्यान से सुनो, इसमें हो क्या रहा है ना. इस केस में फ्री कोलिजन नहीं है. अगर कैलकुलेशन इस तरीके से कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट यू हैव डन, बट आई एम जस्ट सेइंग, अगर कैलकुलेशन इस तरीके से कर रहे हो कि यहाँ पे 8 तो 8 मीटर पर सेकंड और बाद में ये हो गया बिफोर कोलिजन, अगर ऐसे कर रहे हो तो आई एम जस्ट आस्किंग, और आफ्टर कोलिजन हो गया ऐसे 8 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 2m, ये हो गया m. ये तो अब तो m चिपक के जाएगा, है ना. और ये m आ रहा है u से, ये तो पूछा जा रहा है, तो इसलिए पता है नहीं. तो मैं अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं, है ना, तो इन दैट केस क्या होगा ना, mu माइनस ये 2m है, 2m into 8 इज इक्वल टू बाद में 3m into 8. तो अगर m कैंसिल कर लो तो हो जाता है u माइनस 16 इज इक्वल टू 24, तो आता है u इज इक्वल टू 40. तो मैं समझ गया सब लोगों ने 40 क्यों दिया, मैं समझ गया. लेकिन एक चीज बताओ, मोमेंटम कंजर्व करके 40 आया. तो ध्यान से सुनना, मोमेंटम कंजर्व करके 40 आया. मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल में इस केस में दो अड़चन है. पहला प्रॉब्लम, इस केस में aren't we considering motion in the y axis? और मोमेंटम कंजर्वेशन कब लग पाता है? जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो. क्या इस केस में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, ग्रेविटी नहीं है क्या? So therefore this solution has certain problems. Problem number 1,
प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है। Now you might say, लेकिन ग्रेविटी के बाद भी हम लोग मोमेंटम तो कंजर्व तो करते थे। कैसे करते थे? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में तो ग्रेविटी का कंपोनेंट नहीं आएगा ना, इसलिए करते थे। अब तो ग्रेविटी भी है, तो फिर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1 आ गया। प्रॉब्लम नंबर 2 तो और मेजर है, और वो ये है कि क्या स्ट्रिंग फोर्स नहीं दे रहा, टेंशन। तो टेंशन भी तो है। प्रॉब्लम नंबर 2 इज टेंशन ड्यू टू स्ट्रिंग। और ध्यान से देखो, इस बार मोमेंटम कंजर्वेशन तुम लोग लगा रहे हो किस में? वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस में ही ये दोनों फोर्स है। हाँ, अगर ऐसे होता कि ये दोनों फोर्स एक्स एक्सिस में काम कर रहा है, मैं वाई एक्सिस में मोमेंटम अप्लाई कर रहा हूं, नो इश्यूज, ये तो चलता है। ये तो हमने कई बार कर लिया ऑलरेडी कि मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में कंजर्व करते थे, जबकि अच्छा खासा एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी का रहता था। पर उसमें फायदा क्या होता था कि हम हॉरिजॉन्टली कंजर्व कर रहे हैं, ग्रेविटी वर्टिकल है, तो वर्टिकल का कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग कर रहे थे। इस बार वो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो ना, इस बार ग्रेविटी भी वर्टिकल है, क्योंकि इस बार हम मोमेंटम कंजर्वेशन वर्टिकल लगा रहे हैं, और इस बार ग्रेविटी भी वर्टिकल है और टेंशन भी वर्टिकल है। तो दोनों ही हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी हमने सिर्फ प्रॉब्लम रेज किया है, इसका सोल्यूशन क्या है ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और आई एम श्योर अब क्योंकि मैंने मिस्टेक पॉइंट आउट कर दिया है, तो आई एम श्योर यू विल आल्सो थिंक and get the answer, and I'm very confident that almost everybody will get the right answer only. तो ये तो right answer नहीं हुआ, इसका कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है ये थोड़ा सोचने वाली बात है, वो देखना पड़ेगा, बट कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन पर से तो हम नहीं लगा पाएंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना। तो इसका क्या सोल्यूशन है फिर वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। वी विल ध्रुव शर्मा से इसकी ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल लगा देंगे। अरे हॉरिजॉन्टल कैसे लगाओगे? हॉरिजॉन्टल तो वेलोसिटी नहीं है, हॉरिजॉन्टल क्या लगा दोगे? जो भी करना है वर्टिकली करना है, क्योंकि जो मैंने वेलोसिटी पूछा वही वर्टिकली पूछा है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो पूछा नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट इन अप्लाइंग इट हॉरिजॉन्टली। तो दैट वाज जस्ट अ कैजुअल कमेंट प्रोबब्ली। तो देहम इज आस्क्ड कि फिर क्या 40 रॉन्ग है? हां बिल्कुल 40 तो रॉन्ग है। 40 सबने दे दिया, मैंने देख लिया। 40 एवरीबॉडी इज गिवन। इनफैक्ट एक आध जने ने कुछ और आंसर दिया तो उन्होंने चेंज करके बाद में 40 बनाया, मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक एंड सो ऑन। 40 में क्या एरर हो मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो मैंने किया ना मोमेंटम कंजर्वेशन, इसी में दिक्कत है। और क्या दिक्कत है मैंने रेज कर दिया। तो इसका सोल्यूशन क्या है ये हम लोग अब कल डिस्कस करेंगे, एंड आई एम श्योर कल डिस्कशन करने पहले ही तुम लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे, डोंट वरी, ठीक है ना। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। इन द मीनवाइल तो ट्राई करना और इन दोनों के सोल्यूशन निकालना कि इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व कैसे करें। चलो ठीक है, आज के लिए ओके बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ध्रुव सेज हैव अ नाइस डे। मैं भी जनरली यही कहता हूं। चलो ओके, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओ सेम हो गया, हैव अ ग्रेट डे। चलो ओके।